मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में गट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर आधारित एक इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें दुनिया भर के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीते शनिवार को दिल्ली के इंडियन हेरिटेज सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आंतों के स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर द 4G कोड टू गुड हेल्थ नामक एक पुस्तक भी लॉन्च की गई, जो स्वस्थ जीवन शैली के मूल्यों पर आधारित है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षीलेखी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची और स्वास्थ्य को लेकर अपना अनुभव साझा किया। So the message is very clear that all the scientific studies which our ancestors had done was considered voodoo, and it's only coming back to us. The deeper the science goes, the deeper reasoning is happening, and we all start to appreciate that the food and the diet and the body types which are Ayurveda recognized, the science has started to recognize the same, and the scientific evidence is being gathered around that. So the message is that when Prime Minister gave a call for Shriyan or Millets, there was a scientific reason behind it for gut health. लगभग पूरे दिन चले इस इवेंट में अलग अलग देशों और भारत के विभिन्न राज्यों से पहुंचे जाने माने स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट ने गट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पर अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर जहां मिलेट्स के महत्व पर चर्चा की गई, तो वहीं फल फूल और सब्जियों में छुपे स्वस्थ जीवन के रहस्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। यहां फर्स्ट मेडिकल डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने कैंप के जरिए बताया कि फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कितना आवश्यक है। तमाम लोगों ने इस टेस्ट पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। So, not specific to this test, but overall today's conference is exchange of great ideas with experts from all over the globe. We've learned a wide variety of things that we probably knew very less about before. Also understanding inflammation in your body, what is the root cause of that inflammation, even if not the root cause, is it the fuel on the fire, to understand that and then to take action, modulate your diet, modulate your lifestyle. I think the gut is not called the second brain for no reason. And keeping that in mind, we should certainly learn more, respect our gut and do everything within our power to have a healthy gut, because that would translate into a healthy and longer life. ये अति आवश्यक है। मैं चाहता था कि और लोग आएँ, नहीं तो आपके चैनल के द्वारा और लोग इसके बारे में जानें, क्योंकि सारे के सारे हमारे जितने बॉडी के अंग हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, गट के थ्रू यानी हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू, हमारे आंतों के थ्रू कंट्रोल करे जाते हैं। सब जगह कहा जाता है कि मेरे गट फील ये है, गट चैलेंज ये है। तो हर चीज़ कई सदियों से कही जा रही है। अगर आप हमारे वेदों में भी देखो, हमारे पुराणों में भी देखो, हर प्रकार से अपने शरीर का अति आवश्यक अंग हमारी आंतरियों को माना गया है। तो उसके द्वारा काफ़ी क्या बहुत सारे बाकी हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कंट्रोल करे जाते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस अति आवश्यक है। लोग समझ पाएँ क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। So we have heard about a test, food intolerance test. How beneficial is that for the patients? Yeah, it's very important. The most common source of inflammation is what is on the end of your fork. Food. It's the most common source of inflammation. And people think, well, I don't feel bad when I eat wheat. I don't feel bad. But the science tells us only 1 person out of 8 has stomach problems from wheat. The other 7 out of 8 have brain problems. They've got brain fog or depression or anxiety, or they've got joint problems, or they've got skin problems. They don't have gut symptoms. So you eat the wheat and you think you're fine, but actually you think you're fine because the gut's not acting up. It's some other area that's acting. Millets, we had forgotten about it, though we have 5,000 years of history of millets. But since the colonial powers came into play and the Mughals came, millets disappeared as a crop, and we focused on wheat. So
the focus is the important role of millets plays in gut health and lifestyle disorders. हमारा इंटेस्टीन वेगल नर्व से कनेक्टेड है ब्रेन से, उसी तरह से ब्रेन भी हमारे इंटेस्टीन से कनेक्टेड है। तो होता क्या है कि जब लोग कुछ हद तक तो इन्फ्लेमेशन हमें बचाता है बीमारी से, बॉडी प्रोटेक्ट करता है, बट यही इन्फ्लेमेशन जब काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो जाए और लो ग्रेड हो जाए, काफ़ी लंबे दिन खिंच जाए, तो इट रिजल्ट्स इन डिजीज़ लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक्स। और उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाएं और एनवायरनमेंट अपना प्रोटेक्ट करके रखें, स्ट्रेस अपना कम रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें, एडिक्वेट स्लीप करें और अवॉइड स्मोकिंग अल्कोहल। We are organizing this event, International Symposium on Gut Health. 3 years back, we had organized the first of our symposiums, which was called International Symposium on Wheat-related Disorders. So the idea is to get the message across to people as to how it's important to improve your gut health, to turn around any chronic diseases or situations which you're not able to sort out through conventional medicines. So food has a very important role to play. I'm not saying only food can reverse, but food has a very strong supportive role to play. And this joining of the dots is not always understood by people at large, because we are more interested in always addressing our problem on hand. Agar aapko bukhar hai, you'll have a crocine and you feel okay the next morning and you forget about it, right? And you have fever again you'll have a crocine. But why is that fever happening? You have to get to the root cause. So the cause is in the food you eat, and the gut is where it all starts. आपको कोई प्रॉब्लम है और हम बोल रहे हैं कि खाने से हमें गुड हेल्थ भी मिलती है और खाने से इल हेल्थ भी हो सकती है, राइट? तो अगर आप फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराएं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको इरिटेट कर रही है. फॉर एग्जांपल, माय हस्बैंड ऑल द टाइम ऑन एसिडिटी कंट्रोल मेडिसिन्स और बहुत हेल्दी डाइट, चाहे हम अब मतलब मिलेट्स की बात करें या अपना घर में उगाया हुआ खाने की बात करें, वेरी हेल्दी डाइट, राइट? बट he used to have an apple a day, keeps the doctor away, right? और जब फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराया, उनका पता चला कि उनको एप्पल से इंटॉलरेंस हो रही है, जो कि हम कौन सोच सकता है कि एप्पल में ऐसा फाइबर है या ऐसा कोई चीज़ है जिससे इंटॉलरेंस हो रही है. मुझे याद है जब पिछली बार जब ये इंटरनेशनल सिंपोजियम हुआ था, तो यहाँ पे डॉक्टर नीरज ने हमारा ये टेस्ट करवाया था, और ये कहीं बाहर से, जर्मनी से कहीं से इसकी रिपोर्ट आई थी, आई रिमेंबर दैट. तो उस वक्त मुझे पता चला था कि आई एम एलर्जिक टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. तो वो मैंने उसके बाद में उसका ख्याल रखा, तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है. Oh, I think it's terribly important, because we assume just because other people are eating certain things that it's perfectly all right to eat the same things. But what we are not recognizing is that each person is different. They come with a different set of genes, they come with a different set of lifestyle, they come with they're basically different machines. Just because, not all cars are the same and not all humans are the same. So it's terribly important for us to understand what we are intolerant to. And the intolerance doesn't show itself that minute. Intolerance takes time. So it builds up, it builds up, it builds up, and then you're surprised. So why allow yourself to be in a position of surprise when you can actually test for food intolerance earlier? In the gut, there may be two basic things which happen. एक होता है inflammation, जो कई conditions में हो सकता है, या जो good bacteria और bad bacteria हैं, उनमें जो रैपो है वो बिगड़ जाता है, और बैड बैक्टीरिया जब बढ़ जाते हैं उसको डिसबायोसिस बोला जाता है. सो इन्फ्लेमेशन और डिसबायोसिस आर टू थिंग्स विच आर कॉमन टू मोस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और गट डिसऑर्डर्स. अब इसमें वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच हैपन्स अलॉन्ग विद डिसबायोसिस एंड इन्फ्लेमेशन इज एलर्जी
to various ingredients. And among these, an important concept is to understand what we are allergic to in what we eat. And many conditions in our own clinical practice which we see, दुनिया भर के टेस्ट हो जाते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि ये किसी फूड आइटम से एलर्जी हो सकता है. स्कैन्स होते हैं, कई चीज़ें होते हैं, बट फूड एलर्जी इन्वेस्टिगेट करना इम्पॉर्टेंट है. फूड इंटॉलरेंट टेस्ट जो है काफ़ी बेनिफिशियल होता है. कई लोग इस चीज़ को मानते हैं और समझते हैं कि 4 चीज़ें, गेहूँ, दूध, सोया और ईस्ट, ब्रेड से बनी हुई चीज़ें, बेकरी, हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है. या तो वो ऐसे ही छोड़ दें, या फिर अपना फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराएं, उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो छोड़ दें. तो जैसे इंसान समझ जाए वैसे अच्छा है. तो कई लोग जो हैं पैसे दे के समझते हैं, कई लोग ऐसे ही, समझदार को इशारा भी काफ़ी होता है, वो ऐसे भी समझ जाते हैं. So this conference and this topic conference is very, very important, especially in today's scenario, because nowadays our gut and our lifestyle is very, very bad, and that leads to so many diseases. As we all know, medical science has developed so much, but despite that, we're still lacking behind. We are having so many unresolved questions, unresolved diseases, which is not responding very well to conventional allopathic practices. So that's why we need more insight how the gut works. See, if you forget gut health, you have to forget everything. I mean, if the gut is spoiled, love, everything is spoiled, including your brain. That's what we call as a gut-brain axis. We have heard about a test, food intolerance test. How beneficial is that for the patients? See, when a gut dysbiosis is there, you need to understand it through allopathy evidence. That is a test that will declare and give you allergic to which are all the allergens or food materials. Based on that, you can isolate or integrate and then improve. The message is that, our gut is also an organ, and our body has those healthy microbiomes which help us in having a healthy life. And there are certain things you can do, like people who are obese, who are overweight, they have unhealthy microbiome, so they are more prone to develop diabetes, they are more prone to develop hypertension. And since I deal with pregnant women and their babies, so young girls should exercise, should eat healthy. They should not become obese or overweight, because that will make them unhealthy, and not only make them unhealthy, but also their babies also unhealthy, because those women are more prone to have problems, complications related to pregnancy. And they can have problem with the childbirth, they can have premature babies, and those babies are at risk of disease. हम लोगों ने ये इसीलिए किया है कि लोगों तक, जनता तक और मेडिकल प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, सब तक ये बात जाए कि हम जो अनाज खा रहे हैं वो हमारे लिए ठीक होना चाहिए और हमारे सेहत को इम्प्रूव करनी चाहिए. अगर हम कोई ऐसा अनाज खाते हैं जो हमारी सेहत को ख़राब कर रहा है, तो हमें उससे हटना है और उसको बदलना है. तो द राइट ग्रेन चॉइस इज़ व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. द ग्रेन चेंजर इज़ अ गेम चेंजर. तो अगर आप ऐसे अनाज खा रहे हैं जो आपकी आंतड़ियों को ख़राब कर रहे हैं, या आपका खाना आपको पचाने में दिक्कत आ रही है, तो वो आपको अवॉइड करके मिलेट्स की तरफ आएँ और अपनी गट और डाइजेशन पे फोकस करें. अगर आपने बीमारियों से बचना है, और अगर आपने बीमारियों को ठीक करना है, और अगर आपने अपने बच्चों को, अगली जनरेशन को बचा के रखना है. मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत सालों से अपना गट या जो इंटेस्टाइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम को निगलेक्ट किया है, और आज हमने ये सीखा है. इनफैक्ट पिछले 10 सालों से हम यही सीख रहे हैं कि जो गट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. गट मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये ना ही खाने को डाइजेस्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है और वेस्ट मटेरियल जो है उसको बॉडी से बाहर फेंकता है, मगर जो 70% बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी हमारे गट में पाई जाती है. तो ये हमारा सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है. यही नहीं, गट का अपना ब्रेन है. इसका मतलब एक एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन, 30 न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे गट में ही बनते हैं. और ये जो गट है ये ब्रेन से लिंक्ड है थ्रू द वेगस नर्व. अब जो गट है ये किस तरीके से काम करता है, तो इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं.
ये बैक्टीरिया को हम इंटेस्टिनल बैक्टीरिया बोलते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है ये खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ये जो हमारा 70% इम्यून सिस्टम है उस इम्यूनिटी को बेहतर बनाते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो ये तो हो गए अच्छे बैक्टीरिया। तो जो गट में हैं तो दोनों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना है या हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी है तो हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो आज इसी पे चर्चा हुई थी कि हम किस तरीके से अपने जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी मात्रा को बनाए रखें ताकि हमारा ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहे। बता दें, मानव शरीर में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका संबंध हमारी आंतों से होता है। आंतों का खराब स्वास्थ्य न सिर्फ शरीर के तमाम ऑर्गन्स को प्रभावित करता है बल्कि मानसिक रोग भी पैदा करता है। लिहाजा शरीर की तमाम बीमारियों से बचाव के लिए आंतों का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। और आंतें तभी स्वस्थ रहेंगी जब हमारा खान पान और जीवन शैली बेहतर होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।